Okay, today we'll discuss about loss, grief, and stages of grief. So, what is loss? Loss is an actual or potential situation in which something that is valued is changed or no longer available. Or we can say, if something is valued or valuable thing or person or relationship is separated or parted from someone, it is known as loss. People can experience the loss of body image, या तो खुद की बॉडी इमेज का लॉस, सिग्निफिकेंट के लवेबल कोई पर्सन रिलेशनशिप का लॉस, अपनी वेल बीइंग का लॉस, इफ़ somebody is diagnosed with any serious disease, or any job, personal possessions, any objects, or illness, hospitalization, death. It could be anything which is valuable. Loss is an inevitable part of life. Inevitable means it is gonna happen. Some point of time or another, it is going to happen, and there are so many types of loss. First is necessary loss. See, when you have to do something better, you have to lose something which you are having right now. If I want to work on better position, I have to leave my present position in which I am working. So it is a necessary loss, and it is a part of life, which is eventually going to happen. Second is maturational loss. So if you want to study in college, if you want to go to the college, you need to leave your home, you have to go outside. If you want to study in better college, and you have to complete your school, leave school, leave, you have to leave the school life behind, you have to go forward, move on in life. So it is a maturation loss, the development you are going through in your life, you have to put a few things behind. Then next is unwanted or unexpected loss. So it is a loss which is not accepted, expected, or which you do not want to experience, like death of somebody, or relationship, like that. Then situational loss. For example, a person is in automobile accident, sustain an injury with physical changes that make it impossible to return to work, तो और वर्क और स्कूल, इसमें कह सकते हैं जैसे अभी है सिचुएशनल लॉस क्या है कि कोरोना है, सब लोग लॉकडाउन है, घर पे है, क्वारंटीन है, children cannot go to schools, student cannot come to colleges. So it is a situational loss. People cannot go to work, uh, workplaces are closed, schools are closed. So it is a situational loss. Then actual loss. Actual loss occurs when a person can no longer feel, hear, see, know a person or object. For example, include loss of body part. किसी की डेथ हो गई फैमिली मेम्बर की, कोई एम्प्यूट हो गया बॉडी पार्ट, एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, आंखें चली गई, तो जो इस टाइप का जो लॉस है वो किस में आता है, एक्चुअल लॉस में. सो इट इज़ अ वन ऑफ अ काइंड. Then second is perceived loss. So perceived loss, it depends on person to person. It is uniquely defined by person experiences a loss and is less obvious to other people. Some people perceive rejection by a friend to be a loss. uh, some people are some people are like pleasing, have pleasing personality, they want to please others, and they if they feel rejected by other person, they feel a loss. So this is some kind of loss that individual or particular people person can feel, which cannot be perceived as a loss by other human being, because of their perception, because of their experience. So it is individual loss. अगर किसी को लगता है कि किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने इंसल्ट कर दी, तो वी हैव
अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से उस चीज़ को परसीव करते हैं। किसी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और किसी को कम अफेक्ट करती है। सो इट इज़ अ परसीव्ड लॉस। देन नेक्स्ट इज सडन और प्रिडिक्टेबल लॉस। तो अगर जैसे कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई कोई इलनेस हो जाती है, इट इज़ सडन और शॉकिंग। प्रिडिक्टेबल में है जैसे अगर कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, कोई ओल्ड एज है, किसी को 1 साल पहले अगर कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो एक माइंड मेकअप होता है कि या दिस थिंग इज़ गोना बी लॉस्ट। सो कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पता होता है कि धीरे धीरे वो लॉस को हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे सडन एक्सीडेंटों में किसी की डेथ हो गई, या जो सडनली कोई चीज़ हमसे दूर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सडन लॉस्ट। देन इट वॉज ऑल अबाउट लॉस। तो लॉस कितने टाइप के थे? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी पर्सन का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी रिलेशनशिप का, किसी भी चीज़ का जो कि एक पर्सन वैल्यू करता है, ठीक है, या उससे कोई चीज़ रिलेटेड है, अगर वो उससे सेपरेट हो जाती है, पार्टेड हो जाती है, तो इट विल बी कॉल्ड एज लॉस। देन लॉस कितने टाइप के थे? पहला था सिचुएशनल लॉस, जैसे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो लॉस हमें झेलना पड़ता है, जैसे कि लॉकडाउन में स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते। देन मैचुरेशनल लॉस इज़ समथिंग, जैसे अब मुझे अगर कॉलेज जाना है तो मुझे अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे दूसरे स्टेट में जाके अच्छी पढ़ाई करनी है, या मुझे अगर कॉलेज जाना है, मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, या कोई भी अगर लाइफ में आप मैच्योर होते हो, मैं जो लाइफ का ड्यूरेशन है उसमें कई बार आपको एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ में जाना पड़ता है, तो वो उस टाइप के लॉस को हम बोलते हैं मैचुरेशनल लॉस। देन एक्चुअल लॉस और परसीव्ड लॉस। सो एक्चुअल लॉस में अगर लॉस रियल में लॉस हुआ है, विच इज़ कॉल्ड एज किसी की डेथ है, एक्सीडेंट है, कोई बॉडी पार्ट कट गया है, एम्प्यूटेशन हो गया है, तो इसको एक्चुअल लॉस करेंगे। देन परसीव्ड लॉस एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। किसी को किसी चीज़, अगर मान लो किसी को अपनी इज़्ज़त, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, अगर उनको इंसल्ट करता है तो उनके लिए इससे बड़ा लॉस कुछ नहीं होता। लेकिन वहीं सेम चीज़ एक कोई और इंडिविजुअल अलग तरीके से फील करता है, तो इट इज़ नोन एज परसीव्ड लॉस। देन प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल सडन लॉस। सडन में सडनली कोई लाइफ इंसिडेंट ऐसा हुआ, कोई चीज़ आपसे सेपरेट हो गई, किसी की डेथ हो गई या कोई इंजरी हो गई, कुछ हो गया, तो इट इज़ नोन एज सडन लॉस, जिसके लिए यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। देन नेक्स्ट वॉज प्रिडिक्टेबल। तो प्रिडिक्टेबल में क्या होता है कि कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, तो हमें पता है कि हाँ उसकी डेथ होने वाली है, ठीक है, या कोई भी एक आपकी वैल्यूएबल कोई एक ऐसी चीज़ जिसको पता है कि हाँ उसकी एक्सपायरी डेट या इतनी तक है कि वो इतने टाइम तक चलने वाली है, ठीक है, या फिर कोई ओल्ड एज है, आपको पता है कि इनकी एज से कितनी ज़िंदगी बची है, तो कोई बहुत ओल्ड एज है, कोई टर्मिनली इल है, किसी को कोई सीरियस डिसऑर्डर डिजीज़ है। सो अगर ऐसे किसी पर्सन का लॉस होता है, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट से आप सेपरेट होते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रिडिक्टेबल लॉसेस। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ ग्रीफ। तो ये जो फिज़िकली आपसे चीज़ें सेपरेट हुई हैं, जिसको हमने लॉस बोला है, तो अब ये चीज़ तो आपसे सेपरेट हो गई, हमने ये पढ़ लिया कि कितने टाइप के लॉस होते हैं। अब उस लॉस से जो जुड़ी हुई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो फिज़िकली, मेंटली, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीफ बोलते हैं। सो ग्रीफ इज़ बेसिकली एक इमोशनल, एक फिज़ोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, एक नॉर्मल एक प्रोसेस है, कैसे आप उस लॉस को ओवरकम करते हो, कैसे आप उस लॉस से किस तरीके से आप अफेक्ट होते हो। तो ग्रीफ इज़ नेचुरल पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस। Grief is a strong, sometimes overwhelming emotion for people, obviously, because it is coming from loss. Then the reason for grief are many, such as loss of loved one, loss of their health, letting go of long held dream,
etc. Individual experiences of grief vary and are influenced by by the nature of loss. So देखो, जितना बड़ा लॉस होगा उतना ही बड़ी उससे जुड़ी हुई दुख या फिर ग्रीफ होगा, ठीक है, उतना ही टाइम आपको उसको भूलने में या आगे बढ़ने में लगेगा। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना बड़ा लॉस उतना ही बड़ा आपका ग्रीविंग प्रोसेस। देन पैटर्न ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू बेरेवमेंट में वेरी। अब वही सेम है, लॉस के बेसिस पर ही इसका सारा आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो पूरा हीलिंग प्रोसेस है, वो डिपेंड करता है आपका लॉस कितना बड़ा है। देन इफ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन, grief is an emotional response to a loss manifested in ways unique to individual and based on personal experiences, cultural expectation and spiritual beliefs। ठीक है, तो हमारा जो एक जो लॉ किसी भी लॉस को लेके जो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स है उसको ग्रीफ कहते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कई तरीके से हम किसी भी ह्यूमन बीइंग में मैनिफेस्ट किया जा सकता है, देखा जा सकता है। सो मोर्निंग मोर्निंग इट इज़ कोपिंग विद ग्रीफ इन्वॉल्व्स द पीरियड ऑफ मोर्निंग। ठीक है, तो द आउटवर्ड द सोशल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। तो जो अब जैसे कोई चीज़ अगर लॉस हुई है तो जो एक्सप्रेस करते हैं, वो जो सैडनेस होती है, वो जो एक पीरियड होता है जो कोपिंग में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं हम मोurning। Then reaction activated by a person to assist in overcoming a great personal loss। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रेवमेंट। तो ब्रेवमेंट इज़ अ कॉमन डिप्रेस्ड रिएक्शन टू डेथ ऑफ एनी लव्ड वन। किसी लव्ड वन की अगर डेथ होती है तो उसके लिए जो कॉमन डिप्रेस रिएक्शन जो किसी भी इंडिविजुअल में देखा जाता है उसको ब्रेवमेंट कहते हैं। इट encompasses both grief or mourning and include the emotional response and outward behavior of a person experiencing loss। तो इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल ग्रीफ आपका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उस लॉस के बाद, मोर्निंग जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है जब आपका वो दुख एक्सप्रेस होता है। ब्रेवमेंट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू बोथ, लेकिन ब्रेवमेंट जो वर्ड यूज़ हुआ है ये हुआ है किसी की डेथ पे। ठीक है, तो इसमें जो लॉस है वो इट इज़ एक्चुअली लॉस ऑफ लव्ड वन। ओके, सो देन टाइप्स ऑफ ग्रीफ। तो जो अब किसी आपकी कोई भी चीज़ अगर आपसे दूर हुई है, आपसे लॉस हुई है, कोई भी लॉस हुआ है, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? आप सैड होगे, आप डिप्रेस रहोगे, आपको अच्छा फील नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, तो आपको रेस्टलेसनेस फील होगी, बेचैनी फील होगी, होपलेसनेस फील होगी, लाइफ में डिप्रेस फील होगा बहुत। तो ये जो कुछ नॉर्मल रिएक्शन है, अब ये अगर आप किसी की डेथ के, किसी लॉस के बाद अगर आप एक्सपीरियंस करते हो तो इट इज़ नॉर्मल, राइट? So it is a normal grief. It is a normal reaction towards a loss. Then anticipatory grief. A person experience anticipatory grief. It is an unconscious process of disengaging or letting go before the actual um, loss or death occur। अब क्या हुआ कि अगर किसी पेशेंट डायग्नोस होता है कैंसर से, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, उसके पास केवल 1 मंथ है टू लिव या 1 ईयर है, तो धीरे अब जब एंटिसिपेटरी मतलब होता है जो पहले से पता चल जाए, तो खुद को प्रिपेयर करना। अब उसमें फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो पर्सन खुद भी हो सकता है, ठीक है, तो अपने आप को पहले से ही उस ग्रीफ के लिए प्रिपेयर करना क्या होता है? एंटिसिपेटरी ग्रीफ। देन
disenfranchised grief. People experience this grief, also known as marginal या unsupported grief, when their relationship to be deceased when the relationship to the deceased person is not socially sanctioned, cannot openly shared, or seem to be lesser significant. The person loss and grief do not meet the norms of grief acknowledged by the culture. So in this डिसएनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ, इसका क्या मतलब होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई लॉस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अलग होते हैं और दूसरे इंसान के लिए अलग होते हैं। काइंड ऑफ परसीव लॉस कह सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो अपने पेट से बहुत अटैच्ड होते हैं, जिसके पास कभी पेट नहीं होता वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर या फिर अगर कोई कोई भी इंडिविजुअल अपनी किसी एक ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा अटैच है, कोई सॉफ्ट टॉय से या किसी भी चीज़ से, तो वो रिलेशनशिप जो होता है, वो एक्सपीरियंस जो होता है लॉस का, वो पर्टिकुलर वो इंसान ही समझ सकता है। ठीक है, वो दूसरे ह्यूमन के लिए या दूसरे पर्सन के लिए वो उस इंटेंसिटी का लॉस नहीं होगा सोशली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स उसको इतना बड़ा लॉस नहीं मान सकते। लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिसकैरेज हो जाता है तो वो लॉस एक जो मदर फील करेगी वो उसके लिए सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब अटैच नहीं है उससे, केवल वो सबसे ज़्यादा अटैच है, मदर। तो कोई एक लॉस जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए अलग होता है बाकी सबसे, उसकी टूवर्ड्स जो ग्रीफ होता है, जो दुख होता है, वो क्या होता है, मार्जिनल होता है, अनसपोर्टेड होता है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही एक्सपीरियंस कर सकता है और उसका रिस्पॉन्स भी उसके तक ही रहता है, इंडिविजुअल तक रहता है। तो वो एक ग्रीफ जो है वो दूसरों के द्वारा या कल्चर के द्वारा एक्नॉलेज नहीं किया जाता कई बार, तो उसको हम बोलते हैं डिसएनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ। देन कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, अ पर्सन हैज़ प्रोलॉन्ग। अब देखो क्या होता है कि कोई लॉस हुआ, अब लॉस के बाद जो सारे रिस्पॉन्सेज आए, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, उसके बाद धीरे धीरे अभी हम पढ़ेंगे स्टेजेस हुए सारे ग्रीव के, कोप अप किया, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है ग्रीविंग का। लेकिन अगर ये जो मूव ऑन करने के लिए जो एक टाइम होता है, स्टेजेस होते हैं, जब ये बहुत एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। देन एग्जैगरेटेड ग्रीफ। person with the exaggerated grief response often show exhibit self-destructive और maladaptive behavior, obsession, psychiatric disorder, suicide। ठीक है, तो अब देखो डेथ लव्ड वन की बहुत सारे लोगों की होती है। ठीक है, किसी हर एक इंसान है जिसकी कुछ ना कुछ चीज़ उससे दूर होती है, लेकिन सारे लोग अलग तरीके से डील नहीं कर पाते, है ना। कुछ होते हैं जो अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, चीज़ों से डील करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो खुद को मारने की कोशिश करते हैं, उनको होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वही सारी सुसाइडल टेंडेंसीज़, खुद को नुकसान पहुंचाना या दूसरे को नुकसान पहुंचाना, तो ये सब चीज़ें शो करते हैं। इसको बोलते हैं हम एग्जैगरेटेड ग्रीफ। देन डिलेड ग्रीफ। तो डिलेड ग्रीफ में क्या होता है कि आपका नॉर्मल आपको लगेगा कि हाँ इस इंडिविजुअल ने कोप अप कर लिया है, लेकिन जब लाइफ में आगे कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है और वो पीरियड जो ग्रीविंग पीरियड है वो दोबारा एक्सपीरियंस होता है, इसको बोलते हैं डिलेड ग्रीव। डिलेड ग्रीफ रिस्पॉन्स इज फ्रीक्वेंटली ट्रिगर्ड बाय सेकेंड लॉस। अगर दोबारा कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है तो वो दोबारा ट्रिगर हो जाता है। देन मास ग्रीफ। अब क्या होता है कि कई बार समटाइम्स अ ग्रीविंग पर्सन बिहेव इन अ वे दैट इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शनिंग बट इज़ अनअवेयर दैट ही इज़ इन ग्रीफ। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि हाँ अब इस इंसान ने मूव ऑन कर लिया है, अब ये अपनी लाइफ में जॉब करने लगा है, आगे बढ़ गया है, बट इनसाइड क्या है, वो अभी भी उस ग्रीविंग स्टेज में है। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज मास्ड ग्रीव, जो लोग नोटिस नहीं कर पाते।
देन फैक्टर अफेक्टिंग डेथ एंड ग्रीफ, तो इसमें देखो सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है वो है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हमारा जो इंडिविजुअली जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा बिहेवियर है, बिलीव्स हैं, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं किसको, हमारे ग्रीफ को। देन कि वो चीज़, वो लॉस कितना बड़ा है। दूसरी तीसरी चीज़ रिलीजियस बिलीव्स, हमारे रिलीजियस बिलीव क्या क्या है। देन एज ऑफ ब्रीफ्ड, उसके बाद जिसके साथ वो लॉस हुआ है, अब कोई मैच्योर है वो उस चीज़ को अलग तरीके से डील करेगा, लेकिन अगर किसी छोटे कम एज के पर्सन अगर ज़्यादा बड़े दुख से डील करेगा तो उसको और ज़्यादा दुख होगा। ठीक है, तो एज मैटर करती है, क्यों? क्योंकि आपको एज के साथ साथ क्या होते हो, आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो, है ना, एक्सपीरियंसेस गेन करते हो। तो अगर कोई लॉस, एक सेम लॉस अगर दो इंडिविजुअल फेस कर रहे हैं, जिस एक की एज छोटी है और एक अडल्ट है, एक एक्सपीरियंस्ड है, ओल्ड एज है सपोज, तो वो उसको वो चीज़ ग्रीविंग उसको डील करने के लिए ज़्यादा इजी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। देन स्टेजेस ऑफ ग्रीफ रिएक्शन, तो जो आपका ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हो आप इमोशनली, या जो कोप करोगे उस चीज़ से, लॉस से, तो इसके स्टेजेस होती है। ठीक है, तो बेसिकली 5 स्टेजेस है इनका। निमोनिक है डाप्टा, पहला है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। सो डिनाइल, जैसे आपने डिफेंस मैकेनिज्म में भी पढ़ा होगा, सो डिनाइल इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो हमारा माइंड क्या करता है, किसी भी पेनफुल ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस को, सिचुएशन को, सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उस जो फैक्ट है, जो हुआ है, उसको डिनाइल की कंडीशन में ले आता है। ठीक है, तो इट इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन टू रेशनलाइज ओवरवेलमिंग इमोशन। अचानक से अगर एक कोई ऐसी खबर मिलती है कि कुछ बहुत गलत हुआ है, या आपको कोई बहुत बड़ी डिजीज़ डायग्नोस हो गई, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, नहीं मुझे नहीं हो सकता। तो पहला एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि इतना ओवरवेलमिंग और इतनी आपको कोई इतनी बड़ी चीज़ एकदम से आपके सामने आएगी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिनायल करोगे, है ना। तो ये सिर्फ लॉस से नहीं होता, ये कई बार बहुत अच्छी कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाती है, तो तब भी आप कई बार ऐसे नहीं होता है कि नहीं आप, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सो इट बफर्स द इमीडिएट शॉक, ताकि इमीडिएटली कोई शॉक ना लगे, तो उसको ये डिले करता है। इट इज़ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रिफ्यूजल, तो कई बार क्या होता है कि ये कॉन्शियस भी होता है और कई बार ये अनकॉन्शियस भी होता है। तो कई बार आप कहीं ना कहीं आप ये चीज़ जानते हो कि हाँ ये चीज़ लॉस हुई है, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू एक्सेप्ट, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, और कई बार ये अनकॉन्शियसली होता है। देन इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है आपका ग्रीफ की, वो है एंगर, ग्रीविंग प्रोसेस की। तो एंगर में क्या होता है कि अब डिनाइल से आप अगली स्टेज में आ गए, तो अब डिनाइल कब तक चलेगा, जब आप कोई चीज़ हो चुका है, लॉस हो चुका है, तो आप उसे लंबे समय तक डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है। सो या कोई डिजीज़ है तो अब उसके सिम्टम्स होने शो होने लगे हैं, तो अब उसको आप कंटिन्यूसली डिनाइल में नहीं रह सकते। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है, जो कोई भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, नॉर्मली देखा गया है, वो है एंगर। तो एंगर में क्या होता है कि उसके बाद वो एंगर किसी के भी टूवर्ड्स हो सकता है, जैसे कि गॉड, फेट, या कोई डॉक्टर, हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है, फैमिली मेम्बर। तो किसी के टूवर्ड्स भी अपना एंगर शो करना कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हुआ,
ठीक है, तो उसके बाद जो स्टेज आती है वो है एंगर। देन नेक्स्ट वॉज बार्गेनिंग। तो अब गुस्से से काम नहीं चला, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आई, मन्नतें मांगना, प्रे करना, किसी तरह ये सही हो जाए, किसी तरह ये किसी की डेथ हुई है तो वो वापस आ जाए, मन्नतें मांगना, कोई बीमारी हो गई तो ठीक हो जाए। ठीक है, जबकि पता है कि उसका कोई इलाज होने नहीं वाला है। ठीक है, अब लास्ट स्टेज कैंसर है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है फॉर एग्जांपल, या बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, या किसी की सच में डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद क्या होता है, जब बार्गेनिंग में किसी भी तरह से वो चीज़, इंसान क्या करता है, बार्गेनिंग करता है गॉड से, किसी डॉक्टर से, फैमिली मेम्बर से, बड़े से, किसी से भी, कि किसी भी तरीके से वो लॉस को रिवर्स किया जा सके। Then depression. The fourth stage is depression. During the fourth stage, the grieving person begins to understand the certainty of death या कोई भी लॉस। तो अब क्या है, पता है कि हाँ अब ये चीज़ समझ चुका है कि अब ना तो बार्गेनिंग का काम आ सकती है, ना एंगर काम आ सकता है, ना डिनायल काम आ सकता है। ठीक है, अब उस चीज़ को जब एक्सेप्ट, जब पता चल गया उस चीज़ को, तो रियलाइज़ हो गया कि हाँ ये लॉस हुआ है, उसके बाद जो नेचुरल फीलिंग होती है वो है सैडनेस, रिग्रेट। रिग्रेट, आप क्या चीज़ नहीं कर पाए उस इंडिविजुअल के लिए ड्यूरिंग लाइफ। ठीक है, या अगर खुद वो मरने वाला है तो क्या वो नहीं कर पाया लाइफ में, तो रिग्रेट्स होते हैं, सैडनेस, फियर, अनसर्टेनिटी कि अब क्या होगा। तो इट शोज़ दैट पर्सन हैज़ एटलीस्ट बिगिन टू एक्सेप्ट द रियलिटी। उसके बाद एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं होता कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया कि अब मुझे ये चीज़ सच है। एक्सेप्टेंस होता है कि जब आप उस चीज़ को सच मान के आप मूव ऑन कर पाओ। तो अब वो अगर किसी लव्ड वन की डेथ हुई है तो वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन आप मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, अपनी और चीज़ों पे, काम पे, अपने और रिलेशनशिप्स पे फोकस कर पाओ। तो उसके लिए एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। Individuals begin to come to terms with their mortality and inevitable future, or that of a loved one or other tragic event. This stage varies according to personal situation. तो आपको आपका environment कैसा है, आपको किसी भी पर्सन को कितना सपोर्ट मिल रहा है, उसको उसका जो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अर्निंग मेंबर है घर का, अगर उसकी डेथ हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना, उससे मूव ऑन करना ज़्यादा मुश्किल होगा अदर फैमिली मेंबर के लिए, वाइफ के लिए, क्योंकि अर्निंग भी हर तरीके से सपोर्टिंग पर्सन कौन था, जिसकी डेथ हो गई। सो इट इज़ कॉल्ड, जो एक्सेप्टेंस होता है वो डिपेंड करता है किस पे, आपका सिचुएशन पे, आपका एनवायरनमेंट पे, जो भी आपको अवेलेबल है। सो दिस इज़ नॉट अ पीरियड ऑफ हैप्पीनेस बट मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम डिप्रेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब डेथ हो गई, अब हंसने खेलने लग गए तो हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, ऐसा नहीं होता। तो बस इतना होता है इसमें कि वो अपनी आगे जो लाइफ है, काम है और चीज़ें हैं, उन पे फोकस करे। सो आज के लिए इतना। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो इतना आप लोग रिवाइज करना इसको अच्छे से। लॉस क्या है, टाइप ऑफ लॉस, देन ग्रीफ, मोर्निंग, ब्रेवमेंट, इनकी डेफिनेशंस, देन ग्रीफ कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद आपका 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो कि कुबलर एंड रॉस ने दी थी। ये जो 5 स्टेजेस हैं, इसमें पहला है डिनाइल, देन एंगर, then bargaining, depression, and last one is acceptance. So you have to study all this, revise, and ask if there is any doubt. And tomorrow we'll discuss symptoms of normal grief. Okay, have a nice day.